वो कहने लगे कि आप मेरे साथ चले, मलेशिया ले जाऊंगा मैं आपको भी, तो मैं आपको ऐसे करवाऊंगा, मैं आपको ऐसे। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं जाना मलेशिया। फिर वो उन्होंने ज़बरदस्ती किया मेरे साथ बाज़ार में। कपड़े वगैरह मेरे फाड़े हैं, मेरा बाजू टूट गया था सारा, मैंने मेडिकल करवाया सारा। पूरा 2 महीने मेरी तशवीश करते रहे हैं ये शादरे ठाने वाले। किसी ने मेरी बात, हम किसी ने भी हमारी बात नहीं। आपकी तफ्तीश भी आपकी चल रही है कि 2 बहनें भी आपकी जलील हो चुकी हैं, तो तुम तीसरी क्यों नहीं जलील हुई अभी तक? जी ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ बच्चे सेल कर दो। रो के थक गई है ना कि किस तरह से उसने अपना बताना है कि क्या कहे कि भी मेरी इज्जत को लूटने की कोशिश की गई है, क्या कहे कि जी मेरा अपना घर का बनोई है। हमारे घर का बनोई तो बड़े बड़े भाइयों की तरह होते हैं। ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। न जाने हमारे माशरे को क्या होता जा रहा है कि शायद दीन से दूरी है या अखलाकियात का जो है वो दामन हाथ से छोड़ते ही चले जा रहे हैं। रिश्तों को पमाल करना अपना फ़र्ज़ अव्वल समझ लिया है। मेरे साथ माँ जी खड़ी हैं जिनके 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं। और इंसान ज़ाहिरी बात है जब रिश्ते बनाता है तो घर में बहू भी आती है, दामाद भी आता है, और सबसे बढ़कर ये कि उन रिश्तों का एक तकद्दुस होता है जिसको बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन न जाने कैसे शख्स से इन्होंने रिश्ता जोड़ दिया अपनी बेटी का कि जो इस रिश्तों को न जाने समझता ही नहीं था, और उसने अपनी बीवी के अलावा दूसरी बहन के साथ भी निकाह किया और उसके बाद तीसरी जो उसकी सिस्टर है उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए। और ऐसे शख्स से कैसे छुटकारा लिया जाए, इन घर वालों को जान छुड़वानी मुश्किल हुई है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने जो बात की है ऐसे ही है? जी जी ऐसे ही। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी आपकी बेटी की? 7 साल हो गए हैं। 7 साल पहले। और 7 साल से सूली टंगया हुआ है? ਸੂਲੀ ਟੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, 7 साल से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ 2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। 3 ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਿਜਾਣੇ। ਕਦੀ ਦਾਰੂ ਰਮਾਨ, ਕਦੀ ਕਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਥਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ आप अपनी पहली बच्ची की खुला क्यों नहीं करवाती? ਕੁਲਾ ਪਹਿਲੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੀ। ਤਲਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਾਕ यूनियन 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, नकार रजिस्टर नहीं हुआ। तो आपकी जो बेटी है उसने कभी बताया कि इसने मुझे मुंह दुई तलाक दी है? ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ दूसरी कैसे उसके साथ रल गई? ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੇ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਵਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇਥੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਬੌਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਬੱਚੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਦੀਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। अब वो दूसरी बेटी उन्हीं के पास है? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਂਦੇ ਨੱਸ ਕੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਜੜੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਤੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। किरण, ये बच्ची का क्या नाम है? फरा। क्या माजरा हुआ कि पहली भी आपने तो देखा कि पहली 2 बहनों की जो हालत हुई है, तो आपके साथ वो कैसे बातचीत में आ गया? मैंने बातचीत की ही नहीं है मैडम उनसे ना। मैंने ना, वो कहने लगे कि आप मेरे साथ चले, मलेशिया ले जाऊंगा मैं आपको भी, तो मैं आपको ऐसे करवाऊंगा, मैं आपको ऐसे। मैं कहा नहीं, मैंने नहीं जाना मलेशिया। फिर वो उन्होंने ज़बरदस्ती किया मेरे साथ बाज़ार में, मुझे रास्ता करते रहे हैं। साथ उनके एक बड़ा भाई था, 2 गुंडे थे उनके साथ। मैं नहीं उनको जानती ना, उसके भाई को जानती हूँ। फिर मैं नहीं बात उनकी सुनी ना मैंने, तो फिर मैं घर आ गई। 2-3 दिन बाद वो हमारे घर आ गए। उन्होंने मेरे ज़बरदस्ती किया, कपड़े वगैरह मेरे फाड़े हैं, मेरा बाजू टूट गया था सारा, मैंने मेडिकल
करवाया सारा, पूरा 2 महीने मेरी तशवीश करते रहे हैं ये शादरे ठाने वाले। किसी ने मेरी बात, हम किसी ने भी हमारी बात नहीं आपकी तफ्तीश भी आपकी चल रही है कि 2 बहनें भी आपकी जलील हो चुकी हैं, तो तुम तीसरी क्यों नहीं जलील हुई अभी तक? जी उन्होंने सारी मेरी तशवीश की है, सारा कुछ हुआ। सिर्फ मैंने बात सुनी है, तुम नज़र साहब ने SP जोन सी है, उन्होंने बात सुनी है हमारी, और जो CCP हो बस उन्होंने बात सुनी है, नीचे वाले किसी ने अमले ने हमारी बात नहीं सुनी। इसलिए कि हम मजबूर हो के हमने बाहर कदम उठाया कि किसी ने हमारी बात ही नहीं सुनी। अच्छा, यानी कि कोई आप जहाँ जाते वो आपसे सवाल जवाब शुरू कर देते, लेकिन उसका हल कोई नहीं निकलता, अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं किसी ने? नहीं किसी ने भी। बहुत खूबसूरत है, कोई शाहरुख खान है, कोई बहुत अमीर कबीर दुनिया का आखिरी इंसान है कि जिसको कुछ समझ ही नहीं आ रही। बस 2 गरीब हैं ये यतीम हैं, ये किराए पर रहते हैं, इनके कुछ है नहीं, आगे पीछे नहीं है, तो जैसे करते वो हमें फ़ोन करते हैं गुंडे। आपको क्या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं? कोई घर में राशन डालते रहे, बिल्स देते रहे? नहीं बेटे, मैं इंज दी ਹੁੰਦੀ ना तो मैं चुप करके घर बੈਠੀ नाले पैसे खाਂਦੀ। मेरे 7 साल हो गए ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਦਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ? ਦਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਮਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਏ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਸਮਰਾ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਏ। ਇੰਜ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ भी नहीं है। तो धमकियां ने सानू टेलीफोन दो, मेरे बेटे को रिकॉर्डिंग है। तो जारी बात है आपके बेटे भी इस हवाले से काफ़ी परेशान होंगे, ना घर का काम के गए, जेड़ा काम कर भी रहे हैं वो भी पीछे रह गए? नहीं कोई नहीं, बीमार हो गई, इन्हों का बाप फौत हो गया, कैंसर हो गया सी उन्होंने, तो बहुत परेशान हुण जी आ कदम चुकिया अज बाहर निकलन का जी। कितना मुश्किल है इस बच्ची के लिए स्पेशली, क्योंकि इसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का कम से कम कोशिश तो की। हमारे माशरे में मसला ये है कि समझा जाता है कि अगर गरीब है तो शायद उसकी इज़्ज़त भी नहीं है, शायद उसको कोई पूछना भी नहीं है। अगर हम थाने कचहरी जाते तो ये बड़ी वैसे बात बुरी है कि इस कदर मरीम नवाज़ साहिबा कोशिश कर रही हैं, इनके माइक्स लगवा रही हैं, कैमरे लगवा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, बटन्स लगवा रही हैं, एमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद निचला अमला जो है वो FIR के नाम पे एक रद्दी पेपर बनाता है और उसके बाद साइड पर रख देता है। और उसके बाद ऐसी ख़वातीन, खुदा का खौफ करे कसम से, कि ऐसी ख़वातीन क्यों रुल रही हैं थानों में, कैसे दोबारा इनको बुला लिया जाता है कि जब उनके लिए किराया लगा के जाना भी मुश्किल होता है, और उसके बाद उसे कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। कोई 1% तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपके ख़ानदान की कोई औरत हो सकती है। कोई थोड़ा सा तरस, कोई थोड़ा सा आपकी आंख में हया होना चाहिए। चले शुक्र है कि उन्होंने बोला कि ऊपर के अमले ने तो उनकी बात सुनी, किसी CCPO ने, SP मुनज़्ज़ा साहिबा ने उसको एक औरत समझते हुए उसको बुलाया, उसकी बात सुनी, उसका दिल थोड़ा तो हल्का हुआ कि शायद इस माशरे में कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला है। क्या कहना चाहेंगी मरीम नवाज़ साहिबा को? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਵੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ करके मेरी आवाज़ सुने। हाँ जी, यही बात करेंगे हम भी, मरियम नवाज के फ़ैन हैं, बस हमें इंसाफ दिया जाए बस। क्या कहे, वो रो के थक गई है ना कि किस तरह से उसने अपना बताना है कि क्या कहे कि भी मेरी इज़्ज़त को लूटने की कोशिश की गई है, क्या कहे कि जी मेरा अपना घर का बनोई है। हमारे घर का बनोई तो बड़े बड़े भाइयों की तरह होते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मुझे यहाँ खड़े शर्म आ रही है कि मैं उस बच्ची से सवाल क्या करूँ, तो तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आई। तुमने अपनी बीवी को जो है वो इज़्ज़त नहीं दी, तुमने उसकी बहनों को इज़्ज़त नहीं दी। किस तरह के इंसान हो, खुद को इंसान कहलाने का लायक समझते हो? इस दुनिया से जाना नहीं है कोई, क्या उम्र नू लिखवा के ले आए हो? मज़ीद फॉलोअर अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली सोशल पाकिस्तान। दीजिए अंदर मोइन को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।